Students, today we are going to discuss about the topic sex determination, which is very much important topic on the board. And we all know that sex is a hereditary difference between two individuals of the same species. And how is determination of sex is determined at the time of fertilization when male and female gametes fuse together. And in most of the organism, as you all know, that sex is determined by one pair of the chromosomes that are known as sex chromosomes or the allosomes. Suppose in case of human beings, because you have studied this into the in the 10th standard, you all know that in human beings there are 23 pairs of chromosomes. ये आपको पता है कि we have 23 pairs of chromosomes, and out of which 22 pairs are exactly same in both male as well as the females, and these are known as the autosomes. We all know, we have studied about the autosomes, and only one pair is different, and this is XY in case of male and XX in the case of फीमेल. तो ये चीज़ आपको पता है. एंड ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स व्हाट विल हैपन, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट, बिकॉज ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस amongst male two types of gametes are produced. That means 50% having X chromosome and 50% having Y chromosome. ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये मेल के बारे में, स्पर्म के बारे में. एंड फीमेल व्हेन फीमेल प्रोड्यूसेस गैमेट्स, दैट मीन्स ओवा, they carry only one kind of chromosome, that is X chromosomes. So there is an equal probability of the fertilization with ovum with both kinds of sperm. That means X और Y दोनों की probability equal होती है fertilize करने की egg से. तो in that case, suppose if X of female fertilizes with the X of male, then the female child will be born. Or suppose X of female fertilize with the Y of male, then female child is going to be born. तो ये जो चीज़ determination है, it depends upon the chromosomes which are going to be fertilized. So this is a kind of sex determination. ये इस तरीके से आपने पढ़ा हुआ है कि 50% जो है वो probability है कि either a male or female child is produced. And in this chapter, or you can say in this topic, we are going to study little more about rather than only the sex determination in human beings, because there are so many organisms, and they all are not the sex is not determined in the similar way as in the human beings. So now in this topic we are going to study about that there are two things that is called male heterogamy and female heterogamy. What do you mean by male heterogamy? Male heterogamy, what I just told you about the gametes of in the human beings, like just suppose in males, this is the symbol of male. Is male, I told you that male produces two kinds of gametes, one carrying X chromosome, another carrying Y chromosome. And in case of female, it produces XX, that means same kind of. So this is known as homogametic, that means same gametes, or this is known as heterogametic. तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं मेल हेट्रोगैमी, बिकॉज मेल प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ गैमेट्स. तो मेल हेट्रोगैमी, वन एग्जांपल तो अभी आपने पढ़ लिया कि वो किसके अंदर होता है, हम लोगों के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर. एंड अनदर और भी इनके अंदर एग्जांपल्स हैं वेयर मेल फॉर्म्स टू काइंड्स ऑफ गैमेट्स X and Y. So males are heterogametic and females form only one type of gametes, so they contain only X chromosome and known as होमोगैमेटिक. तो ना केवल मैन बल्कि ड्रोसोफिला, बिकॉज ड्रोसोफिला इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और यू कैन से इन ड्रोसोफिला ऑल्सो मेल हेट्रोगेमी इज फाउंड. तो टू एग्जाम्पल्स यू हैव टू कीप इन माइंड, वन इज मैन एंड अनदर इज द ड्रोसोफिला. सो हाउ दे डिटरमिन द sex in these ड्रोसोफिला और मैन, एज आई टोल्ड यू इन द केस ऑफ मैन. आगे मैंने यहाँ पर आपको ये ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ है. Here is the female gametes XX, male gamete XY. Total 46 number of chromosomes हैं, and 22 pairs are known as autosomes. One pair is known as sex chromosome. Here I have written 22 plus XX, that means 22 autosomes plus XX is a sex chromosome. You can write AA also in the place of 22. या आप 22 नहीं लिखना चाहते तो आप AA भी लिख सकते हैं, that means autosomes. But I have written 22 plus XX, 22 plus XY. दिस इज़ द मेल. यहाँ पर ये मैंने मेल का रखा हुआ है, एंड यहाँ पर ये मैंने फीमेल गैमेट्स जो हैं वो रखे हुए हैं. देन दे आर 22 प्लस X, 22 प्लस X, ये गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहा है. एंड इन द पुनेट स्क्वायर आई अगेन कीप इट ऑल हेयर, एंड आप जानते हैं फिर कैसे निकालना है. तो यू कैन फाइंड दैट 50% ऑफ मेल एंड 50% ऑफ फीमेल आर देयर. And another male heterogamy, the example of male heterogamy is here, it is given, which is XX and X0 type.
मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आधे जो गैमेट्स हैं, दैट मीन्स हाफ गैमेट्स हैं विच आर फॉर्म्ड, वहाँ पर तो एक्स होता है क्रोमोसोम्स मेल्स में और आधे फीमेल्स में, और मेल्स में जो हम ये गैमेट फॉर्मेशन की बात करें तो दिस इज़ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल हेट्रोगैमी, तो दिस इज़ द फीमेल गैमेट्स 22 प्लस एक्स एक्स, तो फीमेल का हो गया, दिस इज़ द मेल। तो हियर इज़ ऑल्सो हेट्रोगैमी बिकॉज 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स जीरो, मतलब ओनली वन काइंड ऑफ, हाफ स्पर्म्स के अंदर तो एक्स क्रोमोसोम्स है और हाफ के अंदर वो होता ही नहीं है, तो इसलिए उसको हम एक्स ज़ीरो कहते हैं, एक्स ओ लिखा हुआ है यहाँ पर, बट दिस इज़ एक्स ओ मीन्स हाफ, मतलब एक्स ज़ीरो रादर नॉट ओ, दैट मीन्स हाफ में है ही नहीं। तो सपोज़ वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन एग्जाम्पल्स, अगर हम इसको एग्जाम्पल्स लें, सपोज ग्रास हॉपर है, क्योंकि ग्रास हॉपर में पाया जाता है एंड कॉकरोच में पाया जाता है बेसिकली एक्स एक्स एंड एक्स ज़ीरो टाइप, एंड एक्स ज़ीरो इज़ द मेल का वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है। तो suppose we are talking about the grasshopper, you know that grasshopper has only 24 chromosomes, whereas those of male has only 23. So in many insects there is a chromosomal difference between the sexes, because female referred as XX having 2 X chromosomes, whereas male has X0 with 1 X chromosome as a result of meiosis. You know that eggs are produced, or you can say female gametes are produced, तो हाफ के अंदर तो होते हैं एक्स क्रोमोसोम, वेयर इज हाफ के अंदर कुछ भी नहीं होता, वो ज़ीरो होते हैं। तो मेल प्रोड्यूसेस 2 काइंड्स ऑफ गैमेट, वन इज़ एक्स एंड अनदर इज़ द ज़ीरो, तो ये कहलाता है हेट्रोगैमेटिक। तो ये भी हो गया ना मेल, क्योंकि 2 तरह के हो गए इसके अंदर, एक में है ही नहीं एक में है, तो हेट्रोगैमेटिक हो गए, वेयर इज़ फीमेल इज़ होमोगैमेटिक, अगेन एक्स एक्स हैं दोनों के अंदर। तो यहाँ पर भी मैंने इसको आपको विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो किया होगा ये किस तरीके से है। Then come to the next, female heterogamy. Now name indicates that females produce 2 kinds of, I mean to say 2 different kinds of gametes, whereas male has the same kinds of जो है क्रोमोसोम होते हैं। तो in such case female produce 2 types of gametes, one egg contain X and other lacking it, सपोज नहीं है तो X0 बोलेंगे उसको, और containing Y chromosomes. Thus male has, अब मेल के पास फिर क्या हो जाएगा, मेल के पास हो जाएगा ए एक्स एक्स हो जाएगा, एंड फीमेल क्योंकि हेट्रोगैमेटिक है तो ए मीन्स ऑटोसोम्स, और या तो इनके पास एक्स ज़ीरो होगा, मतलब एक एक्स होगा, एक होगा ही नहीं, या फिर इनके पास होगा ए प्लस एक्स वाई, इस तरह से है ना, ये ए एक्स वाई, अगर प्लस नहीं कहें तो एक्स वाई, तो दैट मीन्स कि वो हेट्रोगैमेटिक हो जाएंगी। और इस ये थोड़ी सी क्योंकि मेल हेट्रोगैमी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, तो इट विल बी कन्फ्यूजन कि क्या है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंट सिम्बल्स लेंगे, बिकॉज वी डिनोट एक्स as a Z, and in case of Y it is denoted as the W. So you have to remember it कि X is denoted to as Z and Y is denoted as W. So ये this is all about female heterogamy के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, and it is also of 2 kinds, जैसे अभी मैंने पीछे पढ़ा था male heterogamy is 2 type, similarly female heterogamy is also of 2 types. तो one is ZZ ZW type एंड अनदर इज Z0 टाइप। ये दोनों टाइप के जो हेट्रोगैमी हैं वो पॉसिबल होते हैं। सपोज इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द ZW टाइप, पहले हम लोग इसकी वाली की बात कर रहे हैं, एंड अब यहाँ पर आपको याद है कि एक्स की जगह पर हम Z ले के बोल रहे हैं और Y की जगह पर हम W बोल रहे हैं। तो ZW in this system it has been found, this is found in some birds including domestic fowl और some fishes, उनके अंदर ये पाया जाता है, and in this case females are heterogamitic, that means females are going to produce 2 different kinds of gametes and males are homogamic as I told you earlier, and sex chromosomes here have been designated as Z as W. तो हम Z and W को डिनोट कर रहे हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए हैं Z and W। तो जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ये with the help of a flow chart you can easily see I have depicted it here, A means autosomes plus ZZ and A plus ZW, जिनके बारे में अभी हमने बात की थी कि किस तरह से हम गैमेट्स इनके लिखते हैं, एंड ये जो ZZ है यहाँ पर ये वाला A प्लस ZZ जो है ये इट इज़ डिनोटिंग मेल एंड ZW इट डिनोट्स फीमेल। तो ये वाला जो है वो फीमेल है और ये वाला जो इधर वाला ये मेल है, और इसको जैसे हम सिंपल पुनेट स्क्वायर से क्रॉस करा रहे थे एग्जैक्टली वैसे ही आप क्रॉस कराएंगे तो यू विल गेट 50% मेल एंड द 50%
फीमेल. नाउ कम टू द Z0 टाइप. ये भी सेम है, Z0 में फीमेल के लिए है यहाँ पर बिकॉज इट इज़ हेट्रोगेमस, एंड दिस इज ZZ ये मेल के लिए है, दैट इज़ होमोगेमेटिक. तो इन दिस काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रेजेंट इन टू द बटरफ्लाई एंड द मॉथ्स, उनके अंदर पाया जाता है. हियर फीमेल हैव ऑड सेक्स क्रोमोसोम. ऑड मीन्स लाइक ए प्लस जेड, क्योंकि जीरो की बात मैं अगर ना करूँ तो ये ऑड क्रोमोसोम हो गया, जेड हो गया. वाइल द मेल हैव द टू होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज ए प्लस जेड जेड, ये मेल्स के अंदर होता है. एंड फीमेल जो है वो ये वाला हो गया, तो ये हो गई हेट्रोगेमेटिक. तो दे प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ एग एंड मेल फॉर्मिंग वन सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज ए प्लस जेड. उनके अंदर तो यही होगा, मेल के अंदर केवल ए प्लस जेड ही आएगा, पर फीमेल के अंदर ये आ सकता है ए प्लस ज़ीरो आ सकता है और ए प्लस जेड, ये दो तरह के हो सकते हैं. तो क्रॉस आल्सो आई हैव मेड इट हियर. तो ये क्रॉस की हेल्प से आप इसको भी समझ सकते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल, इन जैसे पुनेट स्क्वायर में आपने रखना सीखा है, ये बिल्कुल वैसे ही है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन दिस टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनी बीज. अब हनी बीज में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इट इज़ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट टाइप एंड इट इज़ क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. And the point of examination also, it is very much important, the sex determination in the honeybee, and usually you called it haplodiploid sex determination भी इसको जो है वो बोला जाता है. and what do you meaning by haplodiploid kind of sex determination? तो अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा कि it is not similar as we have studied earlier in different kinds of organisms. Here there is difference between the sex chromosomes and the sex determination process also. So we call it haplodiploid mechanism of sex determination. Or what happens in it, that you all know that honeybee, or you can say the queen, is diploid. इसमें जो queen है इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n. दैट मीन्स इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फर्टिलाइज्ड एग. जो एग फर्टिलाइज होता है उससे प्रोड्यूस होते हैं. फिर हम वर्कर की अगर बात करें तो दे आर ऑल्सो डिप्लॉयड. तो ये वर्कर भी जो हैं ये फर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होते हैं. दैट मीन्स हनी बी में क्वीन बी एंड द वर्कर्स, दे आर डिप्लॉयड. दैट मीन्स दे डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग हैविंग डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. वेयर एज मेल्स, और यू कैन से ड्रोन्स जो हैं, ड्रोन्स या फिर इनको हम मेल्स बोल सकते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग. अब क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस हुए हैं, दैट मीन्स दे, यू कैन ऑल्सो से दैट दे कैन प्रोड्यूस बाय द पार्थेनोजेनेसिस, के पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस हुए. दैट मीन्स दे आर हैप्लॉइड. ठीक है, ये कैसे होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे. कौन, मेल और ड्रोन. तो ये हैप्लॉइड हैं क्योंकि अनफर्टिलाइज एग से जो है प्रोड्यूस हुए हैं. दैट इज़ वाई यू कॉल देम हैप्लोडिप्लॉयड मैकेनिज्म, क्योंकि ये हैप्लॉइड होगी और ये डिप्लॉयड होगी, जो फीमेल्स और वर्कर्स हो गए. तो दैट्स वाई यू कॉल देम हैप्लोडिप्लॉयड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, बिकॉज हियर सेक्स इज डिटर्मिन्ड बाई द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, नॉट बाई द एक्स एंड वाई. यहाँ पर एक्स एंड वाई नहीं सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स करते हैं. कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, डबल हैं तो वो फिर क्वीन है या वर्कर है. सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो फिर वो ड्रोन है या जिसको मेल कहते हैं वो है. एंड फीमेल प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड एग बाय द मियोसिस. जब फीमेल में मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड एग्स जो हैं प्रोड्यूस करती हैं, वाइल मेल प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पर्म, लेकिन वो माइटोसिस से करते हैं ना कि मियोसिस. तो मेल्स में आप याद रखेंगे माइटोसिस होती है और स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, वेयर एज फीमेल से मियोसिस होती है और वो एग प्रोड्यूस करते हैं. तो फर्टिलाइज एग्स हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डेवलप इनटू फीमेल. अभी मैं इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको बताऊंगी तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई हैव रिटन हनी बी मेल एंड हनी बी फीमेल, एंड दिस इज़ फिनोटाइप, दैट मीन्स वो मेल दिख रहा है या फीमेल दिख रही है. एंड दिस इज़ जीनोटाइप, मीन्स क्या है उनके अंदर. तो जो मेल्स हैं, हनी बी मेल है, उसके अंदर 16 क्रोमोसोम होते हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम मैंने आपको बताया कि ये डिटरमिन करेंगे सेक्स, ना कि एक्स और वाई. तो ये जो 16 हैं इनमें मिटोसिस होती है, एंड जो सेक्स सेल्स हैं उनमें मिटोसिस हुई और क्या बने, 16 स्पर्म्स बने. और ये जो 16 स्पर्म्स हैं, आप इनको गैमेट्स भी बोल सकते हैं. तो दीज आर द 16 स्पर्म्स. एंड इधर अगर आप देखेंगे तो हनी बी फीमेल है, इट हैज़ 32 क्रोमोसोम्स, मियोसिस होती है इसके अंदर और ये ओवा बनाती है. एंड ओवा हैज़ ऑल्सो 16 क्रोमोसोम नंबर. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 मेल में, स्पर्म में भी हैं, 16 इधर ओवा में भी हैं. एंड व्हेन दे फर्टिलाइज, ये मेल के साथ में फर्टिलाइज इन्होंने किया, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हियर इज़ अ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ये 32 बन गया.
एंड इससे क्या प्रोड्यूस होंगे, क्वीन या वर्कर, बिकॉज मेल्स डू नॉट हैव 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये तो हो गए मेल प्रोड्यूस हुए यहाँ पर, यानी कि सॉरी फीमेल प्रोड्यूस हुए, या फिर यहाँ पर वर्कर जो है वो प्रोड्यूस हुए। और जो 16 क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर ये हैं तो मेल हैं, ये कुछ भी इनके अंदर मतलब किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन नहीं होता है। ये मेल हैप्लॉइड 16 जो नंबर हैं वो अनफर्टिलाइज रहते हैं, और ये अनफर्टिलाइज ही जो होते हैं ये डेवलप करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। ओवा क्या बना देते हैं, ड्रोन्स या मेल्स बना देते हैं। तो यहाँ पर आप मैंने एरो लगा के लिखा है मेल हैप्लॉइड 16 अनफर्टिलाइज, दैट मीन्स कि ये अनफर्टिलाइज रह जाते हैं एंड दे प्रोड्यूस द मेल। तो फीमेल में ही आप अगेन इसको अगेन इफ आई विल रिपीट इट, व्हाट विल हैपन दैट फीमेल हैज़ 32 क्रोमोसोम्स एंड मियोसिस हुआ तो बन गए आपके 16 दो सेल्स बन गई आप जैसे देख रहे हैं। तो 16 इसमें डायरेक्टली पार्थेनोजेनेसिस हो गई, इनसे जो बने एनिमल्स दैट आर नोन एज मेल्स। और अगर फर्टिलाइज कर गए वो मेल्स के साथ में तो 32 हो गया नंबर, तो ये क्या बन गए, फीमेल बन गए। तो इस तरह से कुछ ओवा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं ड्रोन्स या मेल में विदाउट फर्टिलाइजेशन, whereas some ova get to chance with fertilize and converted into the queen or worker. And male do not have father but have grandfather and grandson, but there will be no son, है ना, क्योंकि जो मेल है तो डायरेक्टली कहाँ से बन गया, फीमेल ओवा सीधा पार्थेनोजेनेसिस हुई मेल बन गया। तो मेल का ना तो कोई फादर हुआ ना ही कोई सन हुआ, बट दे हैव ग्रैंड फादर, हो सकते हैं ग्रैंड सन भी उनका हो सकता है। तो दिस इज़ अ स्पेशल और यू कैन से यूनिक काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो क्रोमोसोम ना करके कौन करते हैं, वो करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल के, क्योंकि अगर मेल में हैप्लॉइड है दैट मीन 16 है, और अगर फीमेल में 32 है तो वो बताएंगे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किस टाइप का होगा। एंड ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट थी कि स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द माइटोसिस एंड मेल हैज़ नो फादर बट ग्रैंड फादर, मेल कैनॉट हैव सन्स बट ग्रैंड सन्स। एंड इफ़ क्वीन जो सपोज़ हम इनके बारे में क्वीन बी के बारे में बात करें या इनके बारे में बात करें, तो जो क्वीन बी है या फीमेल हैं या जो वर्कर्स हैं दे आर ऑलवेज डिप्लॉयड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन स्टूडेंट्स। द टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड I hope you understand it well, and if there is any doubt you can ask me